Hi everyone. So welcome back in this lecture series of linear models. So today we are going to talk about the this will be lecture number 2, and we are going to talk about the simple linear regression model in this lecture. Before starting a simple linear regression model, as you know, as you know, when we have more than one variables in our model, then we said that model multiple linear regression model. That is, y is equal to a x1 plus b x2 plus up to so on. This is my multiple linear regression model. And when y is equal to a x1 plus b, this is my simple linear regression model, right? In general in general, when we say y is equal to beta naught plus beta 1 x plus epsilon I, this is my model. This is my general linear model. Yi is equal to this is my general linear model, or I can write this as y curl is equal to beta curl x plus epsilon curl. This is my general linear model. This is my general linear model, right? And this ei is random error component. Random error component. Clear? So now let's see what's simple linear regression model. Simple linear regression मॉडल कि क्या होता है ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. तो सी द मॉडल in which we consider only one input variable, जैसे y is equal to beta naught plus beta 1 x plus epsilon I. What is this? This is my simple linear regression model. Here is only one input variable, that's x. Here is only one input variable, that's x. In this equation, we have only one input variable, that's x, right? So x will act as here independent variable. Whenever we change the values of x, y gets changed. जब भी हम x की वैल्यूज को मतलब x में वैल्यूज पुट करेंगे तो y डिफरेंट वैल्यूज देगा, ठीक है. फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, अप टू जितनी भी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो y की वैल्यूज डिफरेंट आएगी. क्लियर? और here beta naught and beta 1 are my parameters. Beta 1 and beta naught are my parameters. और y क्या है यहाँ पे? That's output variable. C इसको हम कहते हैं output variable, या हम इसी को कहते हैं स्टडी वेरिएबल. इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं. या हम इसे क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स वेरिएबल. या हम इसी को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. या हम इसी को कहते हैं एक्सप्लेनेड वेरिएबल. या हम इसी को कहते हैं रिग्रेसर वेरिएबल. देखो कितने नाम है इसके. क्लियर? और x को हम कहते हैं इनपुट वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, रिग्रेसर एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और ei क्या है मेरे पास? ei इज माय रैंडम एरर कंपोनेंट. क्लियर? और दिस इज माय इंटरसेप्ट and this is my slope.
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में इक्वेशन में हमारे पास जो पैरामीटर्स है, नॉन स्टोकेस्टिक वेरिएबल्स है, रैंडम एरर कंपोनेंट, वो क्या क्या है, वो क्या क्या है। एंड स्लोप को हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m, m रिप्रेजेंट स्लोप, दैट्स tan थीटा, ये हम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, देखो वो वेरिएबल which is used for the prediction, the variable which is used for the prediction, वो कौन सा वेरिएबल होगा इसमें से, इक्वेशन में वो वेरिएबल कौन सा है जो यूज होता है प्रिडिक्शन के लिए, याद रखना, दैट वेरिएबल इज दिस x, ये यूज होता है। ठीक है, एंड the variable whose value is to be predicted, जिसकी वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करनी है, that is study variable. This, देखो, the variable whose value is to be predicted, that's my study variable, that is y, and variable whose value, yeah, which is used, yeah, the variable which is used for the prediction, that's my input variable, that's x, right, that's x. ठीक है, आई होप कि यहां तक समझ आया होगा, लिख लो एक बार। नाउ थोड़ी सी बात करते हैं हम, this is my x-axis, this is my y-axis. Let's suppose this is my equation. Now this is the equation of a line, that is y is equal to beta naught plus beta 1 x. This is my fitted line, क्योंकि एरर को इसमें एरर जीरो है, इस लाइन पे एरर जीरो। लेट्स सपोज ये वो लाइन है जिसको मैंने नाम दिया है फिटेड लाइन, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है फिटेड लाइन। नाउ some points are here, some points are here, 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 here. Now the distance between this fitted line and the point is known as error. This is E1, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5. So see, this is E1 and this will be E2, this will be E3, this will be E4 and this will be E5. So these are the errors. So E1, E2, E3, E4, E5 are the errors. ठीक है, ये हम जब पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे तब हम इन एरर्स का यूज करके पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे। बहुत काम है इसका, एरर्स का बहुत काम है। ठीक है, एरर्स का बहुत काम है। इसको कहते हैं रैंडम एरर कंपोनेंट। ठीक है, दिस EI इज द रैंडम एरर कंपोनेंट। ठीक है, और जो इक्वेशन मैंने लिखा था y is equal to beta naught plus beta 1 x plus EI, this is my linear regression model, linear regression model। और लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था इसके assumptions भी कुछ है, इसके assumptions भी कुछ है। इसके assumptions कुछ है। नंबर 1, expectation of EI is equal to 0 for all I. Number 2, variance of EI is equal to sigma square for all I. Number 3, expectation of EI EJ is equal to 0 for all I comma j. Number 4, covariance between EI EJ is also equal to 0 for all I comma j. See, since the errors are uncorrelated, then if errors are uncorrelated, then the response variable is also uncorrelated. Remember from here, y is equal to beta naught plus beta 1 x plus epsilon I, when the covariance between, let's suppose EI EJ is equal to 0, so this is uncorrelated.
then this response variable will also be uncorrelated. And what will be the regression curve? Regression curve will be that's the expectation of y given x is equal to beta naught plus beta 1 x. If you are asked to find the regression curve of some regression equation, then yeah, some PDF is given, then you are asked to find out the regression curve, then simply do one thing, find the marginal of x, then the joint, already you have the joint distribution, then find the marginal of x, then calculate the conditional distribution, then from conditional distribution you can find the expectation of y given x. Or simply when you are finding the regression curve, if you are given with the parameters, then you can put the value of parameters with respect to this x. So whenever, if you are asked at x is equal to 1, at x is equal to 2, you can simply put the values in this equation, or you will get the regression curve, right? You will get the regression curve. You will get the regression curve. To find these two betas, beta naught and beta 1, you can do this by the least square estimation or maximum likelihood estimate. So वो हमारे सिलेबस में है, वो हम देखेंगे कि हम इन पैरामीटर्स को कैसे एस्टिमेट करेंगे. See, जब भी हम रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ते हैं तो हम एक काम करते हैं, या हमें फर्स्ट इसका जो एसेंशियल पार्ट है ना, जो इसका एसेंशियल पार्ट है रिग्रेशन एनालिसिस का, देखो जब भी हम कुछ एनालिसिस करते हैं हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए. सो जो एसेंशियल पार्ट इन रिग्रेशन एनालिसिस इज डेटा कलेक्शन. क्या है वो? डेटा कलेक्शन. So the essential part in the regression analysis is data collection. कोई भी regression analysis किसके बेस पे हम, मतलब अगर मैं बोलूं कि रिग्रेशन एनालिसिस हमारी गुड और बैड है, वो किसके बेसिस पे होगी? डेटा के बेसिस पे होगी. whenever data is good, regression analysis will be good. डेटा पूरा क्लीन है, डेटा में कोई डुप्लीकेट्स नहीं है, एरर्स नहीं है, पूरा हमने मतलब क्या किया है, उसको स्क्रब किया है, पूरा क्लीन किया है डेटा को. देन उसके बाद जो हमारे पास डेटा है वो बेस्ट डेटा होगा, तो रिग्रेशन एनालिसिस भी बेस्ट होगा क्योंकि उसमें एरर नहीं है, दैट्स फ्री फ्रॉम एरर. सो इस डेटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं? सो इन रिग्रेशन एनालिसिस वी हैव थ्री मेथड्स टू कलेक्ट डेटा. यहाँ थ्री मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. पहला आता है इसमें रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी. रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, और इसी को में हम कहते हैं, ये वो स्टडी है विच इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, ये उसके बेसिस पे हमारे पास जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, पास्ट सिचुएशन का डेटा हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसके बेसिस पे हमने जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी किया है वो एक मेथड है डेटा कलेक्शन के लिए, राइट. नंबर 2, एन ऑब्जर्वेशनल study and observational story. This is simply whenever we observe the process or some population, वो स्टडी कहलाती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी. observe the process or population directly. Then number 3, a design of experiment.
design of experiment. This is the best method of data collection experiment. इसमें आप क्या क्या यूज करते हो? That's DOE, that's design of experiment. जैसे आप पढ़ते हो design of experiment, वहां से हम जो डेटा जैसे कलेक्ट करते हैं, या मैं ऐसे बता सकता हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेटा कलेक्शन मेथड एक्सपेरिमेंट. ये किस लिए यूज होता है? कि जब हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, क्लीन करते हैं, वहां पे भी इसका बहुत ज्यादा यूज है. ठीक है, वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी ये वाला डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हमें बताता है. ठीक है, ये 3 मेथड्स है हमारे पास. याद रखना, डेटा कलेक्शन के लिए हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस में 3 मेथड्स है, एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. ये रिमेंबर आपको याद होना ही होना चाहिए. ठीक है, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस? What are the uses of regression analysis? Uses of regression analysis. कहाँ पे यूज होगा? देखो, एक तो प्रिडिक्शन में तो ये यूज होगा ही होगा. कोई भी अगर आपको पूछेगा रिग्रेशन एनालिसिस आप कहाँ पे यूज करें, लीनियर मॉडल्स आप कहाँ पे यूज करें, डायरेक्टली से इन प्रिडिक्शन. ठीक है, तो पहला क्या होगा इसका? प्रिडिक्शन एंड एस्टिमेशन. प्रिडिक्शन एंड एस्टिमेशन. अब दूसरा देखो, प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन में तो इसका यूज होगा ही होगा. लेट्स सपोज टाइम सीरीज में हम क्या करते हैं? लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन करते हैं. इन्फ्रेंस में लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का यूज होता है. एमएलई निकालने में लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का यूज होता है वहां पे. ठीक है ना. एंड जो दूसरा है इसका यूज है वो है एस्टिमेशन, तो मैंने बता दिया. ठीक है, दूसरा है डेटा डिस्क्रिप्शन. डेटा डिस्क्रिप्शन इसका मतलब क्या होगा? जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं वो एफिशिएंट बनेगा प्रोसेसिंग के लिए. समझो, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिग्रेशन एनालिसिस. इस फॉर्म में उसको लेके आते हैं कि वो मोस्ट एफिशिएंट बनेगा किसके लिए? फॉर प्रोसेसिंग के लिए. दैट्स डेटा डिस्क्रिप्शन. एंड नंबर 3, कंट्रोल. जब भी आप डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तो वहां पे आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स. तो वहां पे एक प्रिंसिपल आता है कंट्रोल. जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा ना एक रिग्रेशन मॉडल में, ये उनको कंट्रोल करता है. ठीक है, मतलब रिग्रेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स फॉर एवरी वेरिएबल जो भी आपके मॉडल में है. ठीक है, ये आपका इसका यूज है. एंड causation is done in regression. सी, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा. जब हम कोरिलेशन पढ़ते हैं, दैट्स द डिग्री इंटेंसिटी whatever you say between two variables. And in correlation we do not study causation कि ये कैसे और क्यों हुआ, cause क्या था इसका. बट इन रिग्रेशन we study कि जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में प्रिडिक्शन करते हैं तो हम ये भी वहां से देखते हैं कि इसका कॉज क्या है. कॉजेशन इज डन इन दी रिग्रेशन. कॉजेशन हम रिग्रेशन में पढ़ते हैं बट कोरिलेशन में नहीं पढ़ते. कॉज एंड इफेक्ट हम पढ़ते हैं इसका, दैट्स कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट. रिग्रेशन में हम वो पढ़ते हैं ये क्यों हुआ और किस इफेक्ट से हुआ. ठीक है, और इसका यूज है डिसीजन मेकिंग में भी. डिसीजन मेकिंग में भी इसका यूज है. हमारे पास एक पूरा डेटा सेट है, हमने उसको क्लीन स्क्रब सब कुछ कर लिया, मॉडल बना लिया. मॉडल बनाने के बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि हमने मॉडल में क्या बनाया, दैट्स डिसीजन मेकिंग. कि लास्ट डिसीजन क्या होगा हमारे मॉडल में, कि सेल्स अगर हम देखेंगे पास्ट ईयर की सेल्स पे हम प्रिडिक्शन करेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन. दैट्स डिसीजन मेकिंग. सिंपली दैट्स डिसीजन मेकिंग. ये भी हो सकता है. क्लियर? Now these are the some examples of where to use regression analysis. Now अब जो
चीज है ना, उसको अच्छे से आप समझ लेना कि मैं क्या यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सी, to find parameters बीटा नॉट एंड बीटा वन। नाउ इसके लिए मेथड है हमारे पास, पहला मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, एंड दूसरा मेथड है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ये दो मेथड से हम क्या बीटा नोड एंड बीटा वन को फाइंड आउट करते हैं। लेट्स डिस्कस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में हम क्या करते हैं? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में हम सिंपली जो मैंने अभी तक आपको बताया है सेम वही हम करते हैं। If this is my fitted line, y is equal to beta naught plus beta 1 x, तीन ही पॉइंट्स में ले लेता हूं। So this is E1, this is E2, this is E3, this is x, this is y. See, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन में मैं एक काम करता हूं, जो भी ये एरर्स है ना, या तो इनको मिनिमाइज करना या इनको फिटेड लाइन पे हम फिट करेंगे। ऐसे लिख लेता हूं मैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स says that we would like to find the line in such a way that the random error are minimum and most of the points they are lying exact on the line। या तो एरर को हम मिनिमम करेंगे या उसको एग्जैक्ट फिटेड लाइन पे फिट करेंगे। तो मतलब सिंपली मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से हम क्या करते हैं, एरर को मिनिमाइज करते हैं या फिटेड लाइन पे फिट करते हैं। मतलब देखो अगर मैं, ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स प्लस ई आई। सी, मुझे क्या करना है, एरर्स को मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, एक और पॉइंट ले लो यहाँ पे, दिस इज E4। से अगर मैं लिखूं समेशन ई आई इज इक्वल टू 1 टू n, इसको मुझे मिनिमाइज करना है। क्या ये मिनिमाइज होगा? नहीं होगा। बताओ सर क्यों? क्योंकि जब हम EIs को ऐड करेंगे, लेट्स सपोज कि जो E1 है उसने कैंसिल आउट किया E2 को, और E3 ने कैंसिल आउट किया E4 को, एंड E4 ने कैंसिल आउट किया, मतलब E3 ने E4 को कैंसिल आउट किया, तो मिनिमम हमें डायरेक्टली वहां पे 0 मिलेगा। बट ये 0 नहीं करना है हमें, ये हमें मिनिमम करना है। या तो फिट लाइन पे फिट होगा या तो मिनिमम करना है। मिनिमम अब हम कैसे करेंगे, अगर हमने समेशन ले लिया तो ये डायरेक्टली वहीं पे 0 बन गया ना, तो ये आइडिया यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो हम इसकी वजह से मतलब ये तो डायरेक्टली वहीं पे होगा ना, तो ये नहीं करना है, हमें मिनिमम करना है। क्योंकि एरर्स तो है, एरर आपस में कैंसिल होगा, वो तो नहीं चलेगा ना, वो तो कहां से चलेगा। जैसे एरर तो है बट सम पॉइंट्स आर lying upwards, some points are lying downwards, but here we can use summation
ई आई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to n। जब हम ये करेंगे तभी तो एरर मिनिमाइज हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। जब वो पहले ही 0 होगा तो हम लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। But that idea will not work in this principle of least square estimation। तो सी हमने जब इसको मिनिमम करेंगे तब हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी। सी कैसे? प्रिंसिपल ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा। अब देखो ये प्रिंसिपल क्या क्या था हमें, समेशन ई आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n, इसका कुछ नाम दे दो s, एंड दिस इज इक्वल टू, देखो हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस ई आई। नाउ y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x इज इक्वल टू ई आई। नाउ स्क्वायर करो दोनों साइड से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे समेशन ई आई स्क्वायर, सो दिस इज समेशन y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू समेशन yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 xi स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1 to n। नाउ ये तो ये है ना हमारे पास, क्लियर। नाउ सी what s will be the function of, but s will be the function of, s will be the function of बीटा नॉट एंड बीटा 1, एंड इसी बीटा नॉट एंड बीटा 1 के रेस्पेक्ट में हम s को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। सो सी कैसे, नाउ डेल s अपॉन डेल बीटा नॉट, देखो यहां से अगर हम इस पे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा हमें, देखो पहले 2 तो बाहर आएगा, नीचे आएगा, दैट्स 2 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, अंदर क्या बचा, अंदर तो सेम ही वही है, और इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा नॉट दैट इज -1, दैट्स -1 सी। तो ये क्या बनेगा, इसको हमें पुट करना है 0 के बराबर, तो ये आएगा 2 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x -1 इज इक्वल टू 0। देखो ये माइनस भी यहाँ चला जाएगा, ये 2 भी यहाँ चला जाएगा, सो वी विल बी लेफ्ट विद द ओनली दिस टर्म दैट समेशन i इज इक्वल टू 1 to n yi माइनस summation I is equal to 1 to n beta naught minus summation I is equal to 1 to n beta 1 x is equal to 0, clear, is equal to 0, तो यहां से summation yi तो as it is है अपनी जगह। now do one thing, divide this equation by n, n 0 by n is 0, so this is, what is this, 1 upon n summation yi is my y bar, so this is my y bar minus n, और n क्योंकि ये कांस्टेंट होगा ना यहाँ पे, मतलब n बीटा नॉट तो कुछ वैल्यू होगा ना, पैरामीटर है ये, तो ये समेशन किस में कन्वर्ट होगा, n में, दिस एंड दिस विल गोज, सो दिस विल बी इक्वल टू बीटा नॉट माइनस एंड दिस विल गोज, तो ये बनेगा बीटा 1 x बार, क्योंकि समेशन दोनों पे है, तो ये समेशन देखो ये कैसे होगा, बीटा 1 एज इट इज, दिस इज समेशन xi डिवाइड बाय n, दैट्स x बार। यहाँ पे हम क्योंकि ये इसके साथ वेरिएबल भी है ना, नॉन स्टोकेस्टिक वेरिएबल तो ये है ना, तो ये बाहर आएगा कांस्टेंट, क्योंकि ये अकेला था यहाँ पे, तभी इस पे समेशन ये कन्वर्ट हुआ n में, तो ये तो बाहर आएगा, समेशन x पे आएगा, तो समेशन xi डिवाइड बाय n इज माय x बार is equal to 0, this is my equation number 1, इसको आप देख लो, this is my equation number 1, now equation 2 कैसे आएगी, सी वहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, बीटा 1 की वैल्यू मिलेगी, देखो कैसे, now
del s upon del beta 1 that is equal to del by del beta 1. इक्वेशन क्या थी मेरे पास? समेशन yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x होल स्क्वायर. इस पे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 नीचे आएगा, समेशन yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x और इसका इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस एक्स आई, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू बीटा 1 कर रहे हैं ना हम. देखो विथ रेस्पेक्ट टू बीटा 1 कर रहे हैं तो इसका इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या आएगा? दैट इज माइनस एक्स आएगा इसका. क्योंकि माइनस एक्स तो बाहर आएगा ना. देखो यहाँ पे क्या होगा ये समझो. दिस इज डी बाई डी बीटा 1. माइनस बीटा 1 एक्स है ना ये. तो माइनस बीटा माइनस एक्स तो कॉमन आएगा. डी बाई डी बी 1 बाई डी बी 1 इज 1. माइनस एक्स आएगा यहाँ पे. दिस विल बी इक्वल टू, देखो ये भी जब हम इसको पुट करेंगे 0 के बराबर तो ये आएगा समेशन yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये आया आपके पास. नाउ यहां से देखो आप, यहां से मुझे बीटा नॉट निकाल के दो. क्या आएगा? दैट्स y बार माइनस बीटा 1 x बार. ठीक है. सो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो हमने यहाँ पे x लिया था ना, उसको साथ ले लो कि -2 राइट साइड शिफ्ट होगा तो 0 बनेगा. x तो था ना यहीं पे, दैट इज 0. तो ये आएगा समेशन x yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x1 था, वो देख लेना. दिस इज इक्वल टू 0. तो यहां से अगर हम बीटा नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, समेशन x yi माइनस क्या आया था? y बार माइनस बीटा 1 x बार माइनस बीटा 1 x बार समथिंग, बीटा 1 xi इज इक्वल टू 0. बीटा नॉट की वैल्यू क्या आएगा? बीटा नॉट इज कहाँ गया? हाँ, बीटा 1 x. तो ये ऐसे है. ठीक है. तो यहां से अगर हम देखेंगे तो बीटा 1 क्या आएगा? यहां से अगर हम इस बीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये आएगा समेशन xi yi माइनस n x बार y बार डिवाइड बाय समेशन xi स्क्वायर माइनस n x बार स्क्वायर. एंड दिस कैन बी आल्सो रिटन एज समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार डिवाइड बाय समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर. And this beta 1 is also equal to sxy upon sxx. ऐसे भी आप याद रख सकते हो. This is simply summation xi minus x bar yi minus y bar divided by summation xi minus x bar square. So beta 1, तो बीटा, ये तो बीटा 1 आया. So बीटा नॉट क्या आएगा? y bar minus beta 1, that is sxy upon sxx into x bar. So this is my beta naught and this is my beta 1. ये दो पैरामीटर्स हमने निकाले. हमने कहाँ से? ली स्क्वायर एस्टिमेशन से. So also you can use beta 1 is also equal to 1 upon n summation xi yi minus x bar y bar डिवाइड बाई 1 अपॉन n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर. ऐसे भी आप बीटा 1 को लिख सकते हो. क्लियर? या आप ऐसे भी लिख सकते हो. कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि बीटा 1 विद द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला.
minus nx bar y bar upon summation xi square minus nx bar square। ऐसे भी आपको पूछा जाता है। तो जब बीटा वन निकलेगा तो जब बीटा वन निकला तो बीटा नॉट भी निकलेगा, दैट्स y बार माइनस बीटा वन x बार। तो x बार और y बार गिवन होगा आपको, यहाँ आप सीरीज से निकाल सकते हो, देन पैरामीटर्स को आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि xi is equal to 136, yi is equal to 6, 10, 23। ठीक है, तो यहां से बीटा वन एंड बीटा नॉट निकालो आप। ठीक है, पहले x बार निकालेंगे हम, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 1 + 3 4 + 10 10 by 3। y बार क्या होगा, 6 10 16 16 + 23 दैट्स 39 upon 3। ठीक है, ये x बार और y बार आ गया। नाउ आपको क्या चाहिए, समेशन xi yi ये चाहिए, समेशन xi स्क्वायर चाहिए। तो अगर हम देखेंगे, दिस इज xi, दिस इज yi, दिस इज xi yi, दिस इज xi स्क्वायर। 1 3 6 6 10 23। Now 6 ones are 6, 10 threes are 30, 23 into 6 3 6 are 18, 13 1 3 8। So xi square, 1 square is 1, 3 square is 9, 6 square is 36। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। नाउ टोटल अगर हम देखेंगे, ये हो गया 10, ये हो गया 23 33 39, तो ये हो गया 30 130 160 174, दिस इज इक्वल टू 36 46। ठीक है, तो समेशन ले लिया हमने इनका। एंड हमें क्या चाहिए, बीटा वन, दैट इज बीटा वन है, दैट इज summation xi yi minus nx bar y bar upon summation xi square minus nx bar square। so ये क्या होगा, summation xi yi is 174 minus n कितना है 3, x bar कितना है 10 by 3 और y bar 13 डिवाइड बाय summation xi square that is 46 minus nx bar कितना है 10, that is x bar ये 10 by 3 मतलब 100 by 3 3s are 9 into 3 3 3s are 9। so this is equal to, इसको कैलकुलेट जब आप करोगे, let me calculate this। so ये 3 और ये 3 cancel out, this is 130, this is 130, this is 174 minus 130, that's 44 divided by, this is 100 divided by 3 is 33.33, 46 minus 33.33, that's 12.67। so whenever we calculate this, 44 divided by 12.67, that is 3.472। so beta 1 is this, then what will be the value of beta naught, the beta naught hat will be y bar is 13 minus x bar beta 1, that is 3.4772 multiply 10 by 3। so that is 13 minus 11.575, that is 9.141366। now if you are asked to find out the regression curve, then this is regression curve, that is expectation of y given x, or you can also write this as y minus y bar. No, this is not correct. You should know about the regression coefficient. Expectation of y bar is beta naught. What's beta naught? 9.141366 plus what's beta 1? Beta 1 is 3.4772. What is x? Let regression curve at x is equal to 1, that is 1, that is similarly equal to this.
that is 9.141366 minus 3.4772, that's 5.66. 416 416 416 416. Now see, the error will be E, that is yi minus yi hat. Now the task to find the yi hat will be beta naught hat plus beta 1 hat xi. As you know beta naught and beta 1 values, then put the values of x from the given table, that for x is equal to 1, x is equal to 3, x is equal to 6. For x is equal to 1, this will be the some other values. This will be y1 hat, that will be y2 hat, this will be y3 hat. So this will be some value, this will be some value, this will have some value. Okay. So now then you have to find the ei. You have to find the ei hat, that will be equal to yi will be the value from the given table. This is e1, e2 hat, this is e3 hat. So these are the errors: y1, y2, y3 minus y3 hat minus y2 hat minus y1 hat. So this will be the residuals, that's ei. So ऐसे हम ei इसको निकालेंगे. देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए. इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने दो तीन चीजें देखी. ये आप एक बार फिर से इन नोट्स को अगर आपने लिखे होंगे तो फिर दोबारा से इनको चेक कर लेना. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा 1 एंड बीटा नॉट.